Hello everyone. Now today we are going to see our next topic in our soil mechanics. Some example based on shear strength of soil. Now in a previous video we saw what is shear strength of soil, definition of shear strength of soil, how it derived from, and there are number of testing used to derive shear strength of the soil. So first of all soil strength क्या है, सॉरी shear strength of soil क्या है, तो डिफाइन करेंगे. The shear strength of a soil is the resistance to deformation by continuous shear displacement of soil particle upon the action of shear stress, and it's derived from cohesion adhesion between soil particle, frictional resistance between the individual soil particle which may be sliding friction or rolling friction or both, resistance due to interlocking of the soil particle. Now we saw some definition like cohesion, internal friction, angle of internal friction, Mohr-Shulker of stress, Mohr strength theory, Mohr Coulomb strength theory. क्या है इक्वेशन, S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, वेयर S इक्वल टू shear strength of the soil, C apparent cohesion, sigma normal stress on the failure plane, angle of internal friction it is phi. And types of soil based on cohesionless soil, purely cohesive soil, cohesion frictional soil. Then we saw modified Mohr-Coulomb theory. Then test for shear strength like direct shear test, triaxial compression test, unconfined compression test, Van shear test. Then shear test based on drainage condition like unconsolidated undrained test, then consolidated undrained test, consolidated drain test. Then after we saw unconfined compression test, then triaxial compression test. ठीक है. So now next some example based on different type of test used to find out shear strength of soil. So first is example, determine the shear strength in terms of effective stress on a plane within a saturated soil mass at a point where the total normal stress is 200 kilonewton per meter square and the pore water pressure is 80 kilonewton meter square. The effective shear strength parameter of the soil area. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है हमारे पास कि नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है. सो इट इज़ सिग्मा. नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस यानी सिग्मा क्या है 200. सो सिग्मा इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन पोर वाटर प्रेशर इट इज़ 80. सो इट इज़ म्यू यू इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ टू क्या फाइंड आउट करना है, द इफेक्टिव shear strength पैरामीटर, सॉरी डिटरमाइन shear strength इन टर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, क्या मांगा है, shear strength इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा. सो वी नो दैट इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. सो वी हैव वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड पोर वाटर pressure, so we can find effective stress. So it is sigma dash equal to sigma minus u. So we have sigma is equal to 200, u equal to 80. So 200 minus 80, so it is 120 kilonewton per meter square. Now shear strength find करना है, तो we know that some equation related to shear strength. So S is equal to sigma dash plus sigma dash tan phi dash. So it is shear strength equation. We have sigma dash is equal to 16 kilonewton meter square and phi dash is equal to 30 degree. So directly value put करो, C dash is equal to given data है 60 kilonewton. Then sigma dash हमने फाइंड किया है 120 and डिग्री क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस phi is equal to 30 डिग्री. सो shear strength हमें डायरेक्टली मिल जाएगा 85.28 kilonewton पर meter square. So in this way we can find shear strength of the soil. Now next is
In unconfined compression test, a sample of clay 8 centimeter long and 4 centimeter in diameter fell under a load of 120 Newton at 10% strength. To compute the shearing resistance taking into the account the effect of change in a cross section of the sample. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, जो चेंज आएगा. ठीक है, शियर स्ट्रेंथ मतलब यानी कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में क्या होगा, सॉइल स्पेसिमेन को हम लोड अप्लाई करेंगे. एट टाइम क्या होगा, उसका डायमीटर चेंज होगा, वो हमें करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है, दे हैज़ ए लेंथ. ठीक है, तो एल क्या है, इनिशियल लेंथ एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देन डायमीटर डी, इनिशियल डायमीटर 4 सेंटीमीटर. लोड क्या है 120 न्यूटन. देन स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन डेल्टा एल अपन एल, इट इज़ 10%, सो इट इज़ बिकम 0.10. सो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.10. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमें डायमीटर दिया गया है. ठीक है, सो इट इज़ सर्कुलर डायमीटर, सो वी हैव इक्वेशन फॉर एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, सो π/4 इंटू 40 स्क्वायर. 40 क्यों आया, 4 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इंटू mm, सो इट इज़ 40 mm. तो π/4 इंटू 40 स्क्वायर. सिंप्लीफाइड इट, सो इनिशियल एरिया हमें मिल जाएगा 1256.63 mm स्क्वायर. नाउ AF वो कैसे फाइंड करेंगे, वी नो डैट A0 अपन 1 माइनस E. हमने देखा था ट्राइएक्सल अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में इक्वेशन फॉर AF इज इक्वल टू A0 1 माइनस E. सब वैल्यू है हमारे पास, एरिया है 1 माइनस स्ट्रेन की भी वैल्यू दी गई है 0.10. सो सिंप्लीफाई करो तो हमें एक वैल्यू मिलेगा 1396.26 mm स्क्वायर. नाउ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है, सो इट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपन एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर एरिया. ठीक है, तो हमारे पास AF की वैल्यू है. ठीक है, P की वैल्यू है, हमें सिग्मा डायरेक्टली मिल जाएगा. सो वी हैव P इज इक्वल टू 120 जो गिवन डेटा है, P इज इक्वल टू 120 न्यूटन. देन AF की वैल्यू भी हमारे पास है, जो अगले स्टेप में फाइंड किया है 1396.26. सो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन शियर स्ट्रेस एट फेलियर, कब फेलियर होगा, सो इट इज़ C इज इक्वल टू QU/2 अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज़ 86 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ 43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो कब फेलियर होगा शियर स्ट्रेस, 43 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना लोड आएगा. देन सॉइल सैंपल कोलैप्स होगा, शियर होगा. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड एग्जांपल, टू ड्रेन ट्राइएक्सल टेस्ट आर परफॉर्म ऑन द मटेरियल. ठीक है, टू ड्रेन ट्राइएक्सल हमें 2 टेस्ट करना है, ट्राइएक्सल टेस्ट. इन अ फर्स्ट टेस्ट the all around pressure is 200 kilonewton meter square and the failure occur at added to axial stress 600 kilonewton per meter square. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जांपल में क्या दिया गया है, ट्राइएक्सल टेस्ट फर्स्ट टेस्ट करना है एंड सेकंड टेस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में ऑल अराउंड प्रेशर सिग्मा 3 दिया गया है, कितना है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड एडेड डेवियर स्ट्रेस सिग्मा डी क्या है 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ सेकंड स्टेप में क्या है, ऑल अराउंड प्रेशर 350, सेकंड स्टेप में 350. एंड फेलियर कब अकर होगा 1050. ठीक है, सो हमें ये गिवन डेटा है. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ C डैश एंड फाई डैश कोरस्पॉन्ड टू दिस रिजल्ट. ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल GTU एग्ज़ाम में पूछा गया है. ठीक है, 2-3 बार, सो इसको इम्पोर्टेंट में कंसिडर करना है. चलो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट. सो फर्स्ट ऑल अराउंड प्रेशर 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन एडिशनल प्रेशर स्ट्रेस
600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम होगा सेकंड टेस्ट के लिए सिग्मा 3 एंड सिग्मा टी। डेविएटर स्ट्रेस एंड ऑल अराउंड स्ट्रेस 350 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट सिग्मा 1 टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू ऑल अराउंड स्ट्रेस प्लस डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, सो दिस इज द टोटल स्ट्रेस, तो वो हम फाइंड करेंगे सिग्मा 1। ठीक है, सो इट इज सिग्मा 1 क्या होगा 200 प्लस 600। ठीक है, 200 प्लस 600। ठीक है, ये क्या होगा 200 प्लस 600। नाउ दिस इज 350 प्लस 1050। ठीक है, सो सिग्मा 1 क्या मिलेगा 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 1 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नो डैट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ट्वाइस सी 10 अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता है एनालिटिकली। सो वी हैव फॉर अ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टेस्ट सिग्मा 1 इज इक्वल टू 800। ठीक है, देन सिग्मा 3 200 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ट्वाइस सी 10 अल्फ़ा। ये इक्वेशन हो गया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड टेस्ट के लिए सिग्मा 1 क्या है 1400, सिग्मा 3 350 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड ट्वाइस सी 10 अल्फ़ा। सो इक्वेशन बिकम 1400 इज इक्वल टू 350 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ट्वाइस सी 10 अल्फ़ा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ हम सिंप्लीफाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सो यहाँ पे साइन चेंज होगी। सो पॉजिटिव इट्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये निकल जाएगा कैंसल। सो सिंप्लीफाइड एट 1400 माइनस 800, सो इट इज़ 600 इज इक्वल टू 350 माइनस 200, सो 150 10 स्क्वायर अल्फ़ा। सो 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 600 माइनस डिवाइडेड बाई 150। नाउ 15 to 4। ठीक है, 15 चौक 60, सो इट इज़ 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। सो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू √4, सो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बराबर है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स 2, सिंप्लीफाइड इट, सो वी गेट द अल्फ़ा इज इक्वल टू 63.43 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है फाई फाइंड करना है। तो फाई कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव नो डैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 63.43 इक्वल टू 45 प्लस 5/2, सो 5 डैश इज इक्वल टू 36.86 डिग्री। सो ये वैल्यू हम अल्फ़ा और जो फाई की वैल्यू है कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे 1 या 2 में। ठीक है, तो हमें सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1। सो 800 इक्वल टू 210 स्क्वायर अल्फ़ा 63.43 डिग्री प्लस ट्वाइस सी 10 63.43 डिग्री। सो सिंप्लीफाइड इट, सो एंड वी गेट द सी डैश इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड alpha, phi dash and c dash. Now next is unconfined undrained test was conducted on a soil sample and the following results are obtained. Cell pressure and deviator stress, so it is sigma 3 and sigma d. ठीक है, जब सेल प्रेशर 100 होगा एट दैट टाइम, डेविएटर स्ट्रेस 65, 200 होगा एट दैट टाइम 132 एंड 300 होगा एट दैट टाइम 200। ठीक है, डिटरमाइन शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस एंड चेक योर आंसर ग्राफिकली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल प्रेशर दिया गया है, देखो यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू वही पिट के 100 200 एंड 300। एट दैट टाइम डेविएटर स्ट्रेस क्या है 65 132 200। ठीक है, अब टोटल स्ट्रेस फाइंड करना है, तो दोनों का समेसन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा टोटल 165
332 एंड 500। वही इक्वेशन प्रूव करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा ट्वाइस सी अल्फा। ठीक है, सो इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट के लिए जो प्रीवियस एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल है 1 एंड 2। ठीक है, सो आप इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं फाई की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, सो आप फाइंड कर सकते हैं बराबर CS10 पैरामीटर ऑफ द सॉइल।